Hello dear students, welcome to the class today. How are you all doing? Yes, I'm sure you all are doing fine, children. So, as you know, we are carrying on with this chapter, Nazism and the Rise of Hitler. पहले भी मैंने बताया है, previously also I have said that Hitler was a person who enjoyed enormous popularity. People say, and that's the truth, कि जितनी पॉपुलैरिटी हिटलर को मिली उतनी शायद in the world there are very few people who have enjoyed that kind of a popularity. And on the contrary, जितनी बदनामी उनकी हुई उतनी शायद किसी की नहीं हुई होगी. Got it? Okay, so this is there. Where we had stopped in the last class, we were talking about the years of depression. All industries were in bad position. Unemployed people, largely in number, lot of unemployed people were there. काम ही नहीं था. जब काम नहीं है तो obviously the industries cannot keep the people employed, क्योंकि अगर आप एम्प्लॉयड करेंगे तो सैलरी देनी पड़ेगी. सैलरी देने के लिए कंपनीज के पास पैसे नहीं थे. ओके, एंड एवरीवेयर, हर जगह, the working class and unemployed, their condition was really bad. All the sections of society, they were filled with the feeling of proletarianization. Societies were filled with feeling of proletarianization. Now you might be thinking, ना कि ये क्या है? Children, this is the word. This is a German word which means workers. पूरे society में, in the society there are always two groups found. One is the owners and other is the workers. So this was the society which was constituting of. Now क्या था कि हर एक सोसाइटी में, I am talking about the European society, there are two groups, bourgeoisie and proletariat. Bourgeoisie are the people. देखो क्या होता है कि इंडस्ट्रियल सोसाइटीज आते हैं ना, especially majorly the European societies and the other American societies. These are all the societies which are based on economy. Economic societies है. All the economy is structured on these two groups. एक तो वो जो फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज ओन करते हैं and they manage the complete production and the complete system, and the others are there who are working in these industries. ठीक है, तो वर्कर्स, प्रोलेटेरियट. अभी क्या हो गया था, all the people who were on the topmost category, the bourgeoisie have come down to the level of proletariat. The organized worker only can keep their heads above water. मतलब डूबने की स्थिति थी, कभी भी कुछ भी हो सकता था. They were on the verge of getting collapsed. लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट क्या हुआ? इट हैज वीकेंड देयर बार्गेनिंग पावर. बार्गेनिंग पावर, अनएम्प्लॉयड पीपल आर देयर. इफ आई एम अनएम्प्लॉयड, काम ही नहीं है, तो व्हेन आई वाज अर्निंग 5,000 रुपीज, आज मुझे 500 रुपए में भी कोई काम देगा तो आई विल डू दैट वर्क. गॉड, आई नीड वर्क. एट दैट टाइम आई विल नॉट सेव मनी.
Big business people were in crisis. Large peasants, ये बड़े बड़े किसान भी जो हैं, they were also affected by a sharp fall. Agricultural prices have fallen. हाँ, businessmen were in trouble. Farmers, क्योंकि भाई या तो बिजनेसमैन होंगे या कोई ना कोई काम तो कर रहे होंगे ना, या एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व होंगे, फार्मर्स होंगे, तो फार्मर्स दे वेयर ऑल इनटू ट्रबल. ओके, farmers were also affected by sharp fall in agricultural prices. Farmers were in problem as large number of people. Okay, agricultural prices fell down. कोई खरीदने वाला ही नहीं था, पैसे ही नहीं है लोगों के पास, तो वो दाल चावल कहाँ से खरीदेंगे. नाउ पीपल वेयर फिल्ड. अब बच्चों को भूखा मरते हुए देख रहे हैं. यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ अ टफ सिचुएशन पीपल माइट बी फेसिंग. कितनी बड़ी प्रॉब्लम में थे लोग. कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आगे नहीं आ रहा था. अब ट्राई टू अंडरस्टैंड वेयर इज द वीमर रिपब्लिक. वीमर रिपब्लिक कहाँ गए. लोगों ने इलेक्शंस हुए, इलेक्शंस में द लीडर्स वेयर इलेक्टेड, ऑल दीज थिंग्स हैड हैपेंड. नाउ वेयर वाज द वीमर रिपब्लिक, द वीमर कॉन्स्टिट्यूशन? सम प्रॉब्लम्स वेयर देयर, इनहेरेंट प्रॉब्लम्स वेयर देयर. ठीक है. एज अ रिजल्ट व्हाट हैपेंड दैट जर्मनी वाज हेडिंग टुवर्ड्स डिक्टेटरशिप. जब रिपब्लिक ठीक से काम नहीं करता है, एक खाली देर इज ओनली वन पर्सन हु, आई मीन द पीपल हु कैन रियली टेक एडवांटेज. दिस वाज द सिचुएशन. ठीक है. एंड ऑल द मेजॉरिटी, ठीक है, मेजॉरिटी वन पार्टी सिस्टम वाज देयर. इम्पॉसिबल टास्क था. कोई भी, सारे लोग दूसरे से लड़ रहे थे कि it is because of you the situation have gone worse. Some people were saying just because of you. तो एक दूसरे के ऊपर there were allegations. Got it? In the meantime what happened came article. In the meantime नहीं, मतलब जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसी समय this was included in the constitution, that was article 48. इसमें क्या था? एवरी टाइम प्रेसिडेंट यूज टू इम्पोज इमरजेंसी. ठीक है. प्रेसिडेंट गॉट द पावर टू इम्पोज इमरजेंसी. Emergency means what happens ki that the political situation is very unstable. People do not know how elections would be held. कौन सी पार्टी को वोट करना है, क्या है. तो वीमर रिपब्लिक saw 20 different cabinets were coming. अलग अलग ग्रुप्स वेयर कमिंग. 239 days तक मैक्सिमम दे यूज टू रूल. मतलब साल भर भी, साल में देर आर 365 days ना, तो दे यूज टू रूल ओनली फॉर, मतलब द कैबिनेट and the administration lasted maximum 239 days. तो साल भर भी जो सरकार नहीं टिक पा रही थी, वो लोगों की प्रॉब्लम को क्या सॉल्व करेंगे. हाउ विल दे सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द पीपल. डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम में पीपल हैड लॉस्ट देयर फेथ. उन्होंने कहा भैया वीमर रिपब्लिक को वोट करके देख लिया, नाक कटा के चले आए वर्सेल्स में. So now people did not want a democratic solution. Now people, लेकिन क्या चाहते थे? Right now it was very unclear. What did the people want? This situation and this condition, it was not making the things very clear. It was very hazy. धुंधला धुंधला था कि अभी पता नहीं क्या होने वाला है. People were waiting for a solution. Okay?
तो दिस वॉज द ईयर ऑफ डिप्रेशन। ये डिप्रेशन कहा जा रहा है बिकॉज इकोनॉमिकली, मेंटली, फिजिकली whole of Germany was in a bad position and they were exhausted to such an extent that they really did not understand how to find out a solution. कुछ उपाय चाह रहे थे, कुछ solution they wanted some solution, लेकिन they were unable to come up with the solution. Got it? Up comes the main hero. Who was this hero? So this is the topic 2. Hitler's rise to power. Germany wanted some solution and they got the solution in the form of Hitler. Ye economic crisis was there. Political crisis was there. So now this was the background when Hitler was coming up to power. लेकिन समझो कहाँ से कहानी शुरू हुई। कहानी शुरू हुई है 1889 में। It started from 1889 when Hitler was born. उसके बाद ये बता दूं, बहुत ज़्यादा उनकी फैमिली के बारे में तो नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ही वॉज फ्रॉम अ वेरी पुअर फैमिली एंड दे हैड अ बिग फैमिली। बिग फैमिली मीन्स 12-13 भाई बहन थे ये लोग, 6-7 ब्रदर्स एंड 5-6 सिस्टर्स, इस तरह से बिग फैमिली दैट आई नो। हिटलर स्पेंट हिज यूथ इन काफी यंग एज में, ही वॉज वेरी पुअर, ही हैड सीन पॉवर्टी। मतलब ये समझने की कोशिश करो कि उन्होंने गरीबी देखी हुई है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर व्हेन broke out, he enrolled for the army. ठीक है, he enrolled in army during First World War. First World War broke out, he enrolled in the army and acted as a messenger in the front. उस समय भाई टेलीकम्युनिकेशंस वेर वेरी लेस ना, तो वहां पे क्या था कि मैसेज एक जगह से दूसरे जगह जल्दी से जल्दी पहुंचाना है, उसके लिए सम पीपल वेर अपॉइंटेड। कुछ लोगों को अपॉइंट किया जाता था हु यूज्ड टू कैरी द मैसेज ऑफ द बिग ऑफिसर्स फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर। ओके, ही एक्टेड एज अ मैसेंजर इन द फ्रंट। फ्रंट मीन्स वॉर फ्रंट, जहां पे वॉर चल रही है वहां पे ही एक्टेड एज अ मैसेंजर इन द फ्रंट। और बाद में क्या हुआ, ही वॉज, देखो पावर तो था बंदे में, कुछ तो बात थी, ठीक है, एंड इसके बाद ही रोज टू पावर एंड आई मीन ही गॉट अ स्टेटस इन आर्मी एंड बिकेम अ कॉर्पोरल। कॉर्पोरल मीन्स काफी हाई पोजीशन इन द आर्मी एंड अर्न मेडल्स फॉर ब्रेवरी। बहादुर तो थे, he was quite brave and he got medals for that. Now what happened? First World War में Germany was defeated. You all know it very well. This horrified him and Versailles Treaty made him furious. Germany lost in First World War and Treaty of Versailles made him furious. अंदर तक गुस्सा आ रहा था कि क्या करके आए। Why did the Weimar Republic sign the treaty? They shouldn't have. And he joined a small, क्या हुआ 1919 में उन्होंने क्या किया, एक पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लिया है, बिकॉज ही वांटेड टू कम टू पावर। पावर में अगर आना है तो आपको एक पॉलिटिकल पार्टी बनानी पड़ेगी। सो 1919
he joined German Workers' Party. ओके, इसके बाद ही टुक द कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि इनके अंदर इतना, आई टोल्ड यू ना, थोड़ा सा पावर मिलता था उसको, ये बहुत टॉप पे ले जाते थे. He used to take that power to very topmost. He took over the organization and renamed it as National Socialist German Workers' Party. He took the power and renamed it as German Socialist Workers' Party. Got it? This party later on was called as Nazi Party. इसी पार्टी को बाद में क्या कहा गया? नाजी पार्टी. छोटी सी जगह से जस्ट सी ग्रेजुअली एंड स्लोली आदमी कैसे ऊपर आ रहा है. 1923 he decided to capture Bavaria. Bavaria is a small city in Germany. बर्लिन के पास. बर्लिन इज द कैपिटल ऑफ जर्मनी. ठीक है, उसके पास में दिस वॉज अ प्लेस बवारिया. उन्होंने कहा कि चल के सबसे पहले वी शुड मार्च एंड कैप्चर बवारिया. लेकिन ही फेल्ड. यहाँ पे हमेशा आपको कामयाबी नहीं मिलेगी. जब तक एक दो बार फेल नहीं होंगे ना, एक दो बार हारेंगे नहीं, तब तक कामयाबी कैसे मिलेगी. सो हिज अटेम्प्ट failed and he was arrested and he was charged of treason. इनके ऊपर देशद्रोह का चार्ज लगाया गया. 1928 elections had happened. क्योंकि स्मॉल पार्टी के मेंबर हो के एंड देन थिंकिंग ऑफ कैप्चरिंग अ प्लेस इज नॉट अप्रूव्ड. सही तो नहीं है, दिस इज नॉट करेक्ट. तो अब क्या हुआ कि मेजरली 1929 डिप्रेशन में नाजिज्म बिकेम अ मास मूवमेंट. देखो किस तरह से आपके अंदर में अगर डिटर्मिनेशन है ना, तो आप छोटी से छोटी चीज को भी जो है बहुत ऊपर तक लेके जा सकते हो. मौके की तलाश करनी चाहिए और मौके का फायदा उठाना चाहिए. मौके का फायदा उठाना बहुत जरूरी है. बिलीव मी, इट इज वेरी डिफिकल्ट. ओके, 1929 में बैंक्स कोलैप्स्ड, बिजनेस शट डाउन, वर्कर्स लॉस्ट देयर जॉब एंड मिडिल क्लासेस वेर थ्रेटन्ड विद डेस्टिट्यूशन. मिडिल क्लासेस को ये था कि अब टाइम हैज कम कि उनको पूरी टाइम, होल टाइम दे हैव टू लीड द लाइफ ऑफ लाइक अ स्लेव. तो क्या हुआ, 1929 इकोनॉमिक डिप्रेशन, नाजी पार्टी became popular. घूम घूम के लोगों को इन्होंने बताया, डोंट वरी, हम हैं, हम सब कर लेंगे. ओके, एंड ये जो था 19, इनका जो ये घूम घूम के लोगों को इन्होंने सहानुभूति दी, विश्वास दिलाया. They made it very, I mean the Nazi party, because only Hitler was not there, there were other people who were supporting him. So they went to each and every group, each and every people, and they spread the message of Nazi party and the message of Hitler.
1932 में it became the largest party with 37% वोट. ठीक है, 1932 it मतलब नाजी पार्टी won elections with कितना था 37% वोट. मतलब इट्स अ बिग विक्ट्री फॉर द नाजीज. नाजीज के लिए दिस वॉज अ टाइम ऑफ सेलिब्रेशन, अ टाइम ऑफ विक्ट्री. पीपल हैड ब्लाइंड फेथ. उनको लग रहा था नाउ द सेवियर हैड कम, नाउ द पर्सन हैड कम हु विल टेक अस आउट फ्रॉम ऑल दीज प्रॉब्लम्स. अब समझो कि हिटलर का प्लान क्या था. व्हाट वाज हिज प्लान? सबसे बड़ी चीज है पर्सनालिटी ऑफ हिटलर. हिटलर वॉज अ पावरफुल स्पीकर. ये जो भाषण देते थे ना, पीपल यूज टू क्राई, यूज टू लाफ, मतलब इतना लोग चार्ज अप हो जाते थे. He used to motivate the people a lot. His words moved the people. मतलब such a powerful person. Okay, imagine his power, that the way he is speaking, he can inspire the people and motivate the people to such an extent that people were ready to lay down their lives. And he promised to the people. उन्होंने लोगों को प्रॉमिस किया. People wanted such a leader. वो एक ऐसे लीडर की खोज में थे. Who can get back their lost respect? जितनी इन लोगों की इज्जत खो चुकी थी, इन लोगों को एक लीडर की तलाश थी जो इनकी इज्जत इन्हें वापस कर पाए. And yes, of course, I'm talking of the Treaty of Versailles, where Germany had lost everything. So he said, I will undo all those things. जितने लोगों ने बेइज्जत किया है, भर भर के बदला लूंगा. Yes, कभी उनकी स्पीच, go do it, Google, कि हिटलर्स स्पीच. आप गूगल नहीं भी करो, जस्ट Hitler has written a book, Mein Kampf. Yeah, it's Hitler's book. Please read that. I think it is there in the library. Book by Hitler. Mein Kampf. Name of the book. Okay, so this was the name of the book, and he promised employment. Unemployed people ko he said that he will be giving them employment. Those who are looking for work, secure future for the youth. The young people will be getting a secure future, whose future was very uncertain. And he said he will be throwing out all the foreign influences. और उन्होंने कहा कि जर्मनी के खिलाफ जितने लोगों ने षड्यंत्र किया है ना, ठीक है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. ही वाज टॉकिंग ऑफ द कॉन्स्पिरेसीज. यस, ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स क्या था? ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स वाज द कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट जर्मनी. सब लोगों ने मिलके जर्मनी को जितना डाउन करने की कोशिश की थी. सो दिस वाज द टाइम दैट ही प्रॉमिस्ड द पीपल दैट ही विल बी अनडूइंग ऑल दैट इनजस्टिस. जितना भी इनजस्टिस हुआ है उन सब को वो खत्म करेंगे. एंड पीपल नाउ बिलीव्ड इन हिम. हिटलर डिवाइज्ड अ न्यू स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स. ठीक है, हिटलर डिवाइज्ड अ न्यू स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स. नया तरीका था. कैसे मीटिंग्स यूज्ड टू हैपन, स्पेक्टाकल, मास मोबिलाइजेशन में ना ही वॉज अ ब्रिलियंट पर्सन इन मास मोबिलाइजेशन. करोड़ों लोग, लाखों लोग आते थे इनको सुनने के लिए. पीपल यूज टू गेट इंस्पिरेशन. And Nazis just used to announce there is a massive rally
एक बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली है, हिटलर विल बी एड्रेसिंग द मीटिंग। बस इतना सुनना था, इतना सुनना था। बिलीव मी चिल्ड्रन, लोग दौड़े आते थे। पीपल यूज टू कम रनिंग जस्ट टू हियर वन स्पीच ऑफ हिटलर, कि हिटलर की बस बात सुन लें। ओके, बिग मीटिंग्स, large banners, रेड कलर का बैनर विथ स्वस्तिक साइन एंड नाजी सल्यूट। नाजी सल्यूट वॉज नॉट दिस सल्यूट, नाजी सल्यूट वॉज दिस सल्यूट, हाथ आगे करके हेल हिटलर। हिटलर को सब हेल हिटलर मतलब हिटलर के नाम का। एंड राउंड्स ऑफ अप्लॉजेस। कहते हैं वंस हिटलर यूज टू स्पीक, आफ्टर दैट व्हेन ही यूज टू स्टॉप, आते आते घंटे तक तालियां बजती रहती थी। And that was his power. Nazi propaganda, the way Nazis have spread their message, they had shown Hitler as a messiah. Hitler को उन्होंने God बना दिया. And they said to the people that Hitler is the person who will take out who will give respect to the people. He will undo the injustice that has been done by the people, the injustice that has been done during the Treaty of Versailles, restoring the power, and the people who used to imagine respect, love, care. ठीक है, economic and political crisis was there. So when they saw Hitler coming up, now they surrendered. I mean, they really worshipped him as God. Got it? क्या meetings होती थी, क्या rallies होती थी. I would like to show that to you. Students, just now we have discussed about the Weimar Republic and its downfall. ठीक है, some terminologies that are there, we discussed that also. Proletarianization is one of them. एक जो हमने डिस्कस किया दैट वाज प्रोलेटेरियनाइजेशन. प्लीज़ रिमेंबर टू कैटेगरीज, बर्जियोई एंड प्रोलेटेरियन. जर्मन टर्मिनोलॉजीज आर देयर. एंड देन द आर्टिकल 48. Government was being formed in Germany in such a crisis period. As soon as the government was formed, it used to collapse. एक साल भी नहीं रह पाते थे. मैक्सिमम डेज जितने दिन के लिए उन्होंने गवर्नमेंट बनाया, दैट वाज 239 days. गॉट इट? एक तो ये आपको बताना है. Another thing that you have to say is Hitler's rise to power. मैंने आपको कहा ना, I wanted to show you some pictures, extremely beautiful pictures. पहला तो आप ये देखो, ये क्या है? My dear students, this is what is the Nazi salute. हिटलर को देख के ही लोगों में इतना उत्साह जाता था. The kind of feeling they had, that is what is shown here. हाथ उठा के और ये ग्रीट करते थे हिटलर को. एंड दे ऑलवेज वेयर चार्ज्ड अप टू डू एनीथिंग फॉर हिटलर. हिटलर के लिए कुछ भी करने को ये तैयार रहते थे. ठीक है, दिस इज वन ऑफ द फॉर्म्स ऑफ हिटलर बीइंग ग्रीटेड एट द पार्टी कांग्रेस नवंबर 1938 में ये मीटिंग हुई थी. All the people of the Nazi party had met here, and look at the enthusiasm. कितने खुश हैं. Children, I was talking to you about the Hitler. This is what was the banner. That was Hitler's banner. And look at the crowd. Look at the crowd. Children, the crowd, it is not in thousands, actually it is in lakh. People were dying to listen to Hitler. Just have a look at Hitler. कि who is this मसीहा? ये भगवान कौन है जो हमको हमारी बेइज्जती से निकालेगा, हमारी बेइज्जती का बदला लेगा.
लुक एट द आर्मी दैट वॉज फॉर्म्ड। क्या आर्मी इन्होंने बनाई थी, आप इस आर्मी को देखिए एंड इनके डिसिप्लिन को देखिए एंड द वे दे आर कंडक्टिंग देमसेल्व्स, जस्ट सी दैट दिस वेयर सम थिंग्स दैट वेयर वेरी यूनिक अबाउट हिटलर। ठीक है, रेस्ट विल बी कैरिंग ऑन इन द नेक्स्ट क्लास चिल्ड्रन। थैंक यू सो मच।